तो जो कॉलेजेस को जिस यूनिवर्सिटी की डिग्री अलॉट की जाती है वहां पर भी 6 मंथ्स का एक सेमेस्टर का इंटर एक्शन प्रोग्राम जो है वो वहां पर रखा जाए, ताकि बच्चे देखें कि कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में फर्क क्या होता है। तो इस तरीके से जो है वो बच्चों की आपस में मोहब्बत बढ़ती है, और बच्चे ये समझते हैं कि एक दूसरे की बात, डायलॉग का फरोग बेसिकली ये है कि हमारे अंदर अदम बर्दाश्त है, हम एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, हम सिर्फ अपनी कहना चाहते हैं। ये बढ़ते हुए यूट्यूब चैनल्स आप देखें कि हम सिर्फ अपना कहना चाहते हैं। तो एक साइबर सिक्योरिटी को भी इस पर करना चाहिए, और एक जो है वो इंटरेक्शन, एक उसके अगेंस्ट जो है वो काउंटर मैसेजेस आने चाहिए, एक मिस इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट जो है वो काउंटर मैसेजेस आने चाहिए, और कोई ऐसी वेबसाइट डेवलप करनी चाहिए जहां पर किसी भी फेक इंफॉर्मेशन की हम वेरिफिकेशन कर सकें। Thank you, Dr. Sadia. That was a thoughtful and practical vision for an education system rooted in responsibility and reform. And finally, Colonel Niazi, आप पाकिस्तान के नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए ऑनेस्ट, सेफ एंड इफेक्टिव सिस्टम बनाना चाह रहे हैं? Where they should begin? Thank you very much. This is very difficult but honest question, because it starts from within. Work on yourself and be resilient, be elegant. Our country is full of resources. Only thing is that we have to organize and bring the purpose of life back to your life, adjust to its directions, and then work hard in that way, and then wait for Allah to actually open up the world to you. So, घबराने की बात नहीं है. The world is open. We are much betterly placed than most of the countries in the world. हम इतनी दुनिया घूमते हैं. We are much more better placed in everything, by our family structure, by our healthcare system, by our financial, agriculture, or anything we talk about. अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो स्टैग्नेशन का शिकार है, बट गवर्नमेंट को आप छोड़ दें, आप अपने लेवल पे बिल्डअप करें एंड डेवलप योर पर्सनालिटी टू लेवल. वो ईमानदारी पे खड़ी होती है. जब आप एक बहुत ऑनेस्ट हो जाएंगे सबके साथ, सीधी बात करेंगे और शॉर्टकट्स और फ्रॉड और फॉर्जरी से हट के सोचेंगे कि यू हैव टू वर्क योर वे. टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक वन राइट. आई ओनली से टू द यंग जनरेशन, जो मैसेज है ना, कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे करने दें. यू डू नॉट यू शुड नॉट बी डूइंग. इधर कहते हैं वो चीटिंग कर रहा है मैं भी करूंगा, वो शॉर्टकट यूज कर रहा है मैं भी करूंगा, वो पैसे कमा रहा है मैं भी कमाऊंगा. ओनली थिंग इज कि टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक वन राइट. राइट इज राइट एंड हंड्रेड ऑफ रॉन्ग आर रॉन्ग. तो अपने कोर्सेज को आइडेंटिफाई करें, स्टडी करें, एनलाइटेंड करें, और अपने साथ सिंसेयर हों, अपनी फैमिलीज के साथ, अपने सिस्टम के साथ. तो द लाइफ इज ओपन फॉर डेवलपमेंट एंड दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज मच ईजियर. So time is less. So this is small message from me. Thank you. Thank you, sir. A strong closing message. Your words will definitely stay with our audience as they take their steps forward. With that, we officially wrap up our speaker Q&A session. I would like to thank all our speakers once again for sharing such clear, honest, forward-thinking responses. Your insights today have helped us understand how deeply national security is tied to ethical systems and everyday leadership. The conversation so far has been both eye-opening and incredibly timely, especially as we rethink what national security truly means in everyday life. We will now begin our audience Q&A segment. This is your chance to directly engage with our speakers, raise important follow-up questions, and offer your own perspective related to today's theme. You are welcome to raise your hand and I will invite you to unmute and speak, or drop your questions in the chat and I will read it out on your behalf. Let's aim to keep each question short, relevant, and respectful so we can accommodate as many voices as possible. Our first question is from Shamaim for Dr. Aftab. Dr. Aftab?
Yes, please. Dr. Aftab, in your view, what are the biggest institutional loopholes that allow quackery to continue despite existing laws, and how can we begin to close them effectively? सबसे पहले देखें, इसमें जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वहाँ तो मेल प्रैक्टिस इस तरह से नहीं होती क्वैकरी या डॉक्टर्स की। जो मैंने आपसे गुजारिश की थी अपनी प्रेजेंटेशन में वो ये हो सकता है कि जो प्राइवेट प्रैक्टिस होती है वहाँ हो सकती है। गवर्नमेंट का एक सिस्टम है जिसकी तरह तो चल रहे हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पे तो एक पूरा स्ट्रिंजेंट उनके पास सिस्टम होता है जिसके जरिए वो काम कर रहे होते हैं। ये जरूर हो सकता है कि वहाँ पे वो अपनी प्रैक्टिस में कभी, जैसे मैंने गुजारिश की थी कि अगर एक दवा की जरूरत है 2 दवा लिख दें, 3 दवा लिख दें, लेकिन कोई नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर वहाँ नहीं बैठा सकते हो, और ना ही कोई क्वैकर को या किसी ऐसे शख्स को जो क्वालिफाइड ना हो, एक्रेडिटेड ना हो, वो किसी भी इंस्टीट्यूशन का पार्ट नहीं बन सकता। तो इस तरह से अगर हम देखें जो मेल प्रैक्टिस है या क्वैकरी है वो आउटसाइड हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूशन होती है, जहाँ पर जो है बैठे होते हैं क्लिनिक्स के ऊपर और मुख्तलिफ लोगों को जो है मुख्तलिफ दवाएं लिख के दे रहे होते हैं, उनको पता भी नहीं होता। और सबसे ज़्यादा जो क्वैकरी स्टार्ट होती है वो अपने घर से होती है। अगर घर में 4 फर्द हैं तो वो ये होता है कि जी मैंने भी ये दवा खाई थी, आप भी ये दवा खा रहे हैं, मगर किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अलावा। मुझे खांसी हो रही थी तो मुझे ये दवा दी गई थी, डॉक्टर ने, आप भी ले लीजिए। या मेरी खाला, मेरी फूफी, मेरी नानी, मेरी दादी ये दवा खाती थी, आप भी खा लें। या मेरा पड़ोसी, मेरा दोस्त, मेरा ऑफिस में कुलीग था, वो ये काम करता था, आप भी काम कर लें। तो क्वैकरी जो है वो वहीं से शुरू हो जाती है, और मेल प्रैक्टिस भी। अब अगर वो ना उनको डोजेज का पता होता है कि कितनी डोज देनी है, 1 चमचा देना है, 2 देना है, 1 गोली, 4 गोली, तो मेल प्रैक्टिस वहां शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले तो इसको डिस्करेज करना चाहिए घर से। उसके बाद फिर आप जब इंस्टीट्यूशन में पहुंचते हैं तो वहाँ अगर खुदा ना खास्ता आप समझते हैं कि इस तरह की कुछ चीज़ें होती है तो फौरन उसको आप एड्रेस करें। और तीसरा, जो शहरों में तो कम है, कंट्री साइड पे जो इस तरह के क्वैकर्स हैं उनके पास लोग आ जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितना भी जो लोग हैं वो इकोनॉमिकली इतने ज़्यादा साउंड नहीं होते, तो वो इस तरह के क्वैकर्स को मेल प्रैक्टिस को जाते हैं, जो कम पैसों में उनको जो ज़्यादा डोजेज की दवा दे देते हैं और वो सही हो जाते हैं। लेट्स से जिंदगी डेक्सा प्रैक्टिस है जिसको हम अपनी दवा में डेक्सामेथासोन कहते हैं, उसके इंजेक्शन लगा देते हैं या उनको गोलियां दवाएं दे देते हैं। वो उससे उनका इम्यून सिस्टम बूस्टअप तो हो जाता है, लेकिन वो वक्ती होता है, फिर खराब हो सकता है। तो इस तरह की जो मेल प्रैक्टिस हैं या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बंदे से खुद से शुरू होती हैं। जिस तरह मैं सुन रहा था बाकी अपने स्पीकर्स को, वो एजुकेशन की हमको बात कर रहे थे, लेकिन अभी देखिए जब बाहर ममालिक हैं वहाँ बच्चे को जो सिग्नल्स की जो साइंस है वो अपने ग्रास रूट लेवल से शुरू करते हैं। जब बच्चा बड़ा होता है तो फिर जाके वो उसको पता होता है कि जी सिग्नल में रेड कौन सा है, येलो कौन सा है, ग्रीन कौन सा है। हमारे यहाँ पे करिकुलम में शामिल ही नहीं है। इसी तरह की जैसे ये क्वैकरी है, मेल प्रैक्टिस है, अगर वो आप इनिशियली स्टेज से डालने शुरू करते हैं बच्चों के करिकुलम में, तो बच्चे के ध्यान में होता है कि जी मैंने इस डॉक्टर के पास जाना है, इसके पास नहीं जाना है, ये नॉन क्वालिफाइड है या क्वालिफाइड है, या उसके पेरेंट जो है लेके जाते हैं। अक्सर गाड़ियों में जो है लोग पेरेंट्स बैठे होते हैं, सीट बेल्ट नहीं बांधते। तो बच्चा अगर वो उसको एजुकेट है तो बाप से कहेगा बाबा आप बेल्ट सीट तो बांध दीजिए, आपने सीट बेल्ट नहीं बांधी आपने, तो उसको सीट बेल्ट बांधना पड़ती है। तो इसी तरह से अगर खुदा ना खास्ता बच्चा जो है या एक समझदार बच्चा अपने बाप के साथ किसी क्लिनिक पे जाता है, किसी डॉक्टर के पास जाता है, तो उसको ये एजुकेशन होनी चाहिए कि ये क्वालिफाइड डॉक्टर है या नॉन क्वालिफाइड। हम बाकी चीज़ों में तो हर चीज़ जो देखते हैं, परसेप्शन देखते हैं जी, ब्रांड ढूंढते हैं कि ब्रांड हमें मिलना चाहिए, लेकिन हम हेल्थ के सिस्टम में ब्रांड नहीं ढूंढते। हम जब भी किसी दुकान पे जाते हैं जी हमें फला ब्रांड दिखाते हैं, डॉक्टर साहब जैसे जाजिम साहब भी किसी ब्रांड से मुंसलिक हैं, तो लोग कितना ज्यादा परसीव करते हैं ब्रांड लेना। आप किसी स्टोर में जाते हैं, आप हमेशा ब्रांड वाली चीजें खाते हैं, नॉन ब्रांड उठाते नहीं। लेकिन हेल्थ के मामले में ना हम ये देखते हैं कि हम दवा किस कंपनी की ले रहे हैं, ये दवा जो है इसकी एक्सपायरी तो नहीं है, ये दवा कोई क्वैकरी की तो नहीं है, या दवा जो है ये स्पूरियस तो नहीं है, या दवा जो है ये सही बनी हुई है, कंपनी सही है नहीं है, ये इस पर जो हमारी हेल्थ अथॉरिटी ने उसका लेबल लगा हुआ है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है या नहीं है। बस हमने डब्बा लिया, दवा लिया, खोले लेकर आ गए। मेडिकल स्टोर पे जब हम जाते हैं तो सबसे बड़ा क्वैक वो होता है, क्वैकर वो है। हम जाते हैं उससे कहते हैं ये मैं सर में दर्द हो रहा है, नजर जुकाम खांसी, दवा दे दो। वो एक पुड़िया बांध के देता है और आप उस पर आ जाते हैं। जहाँ वो खड़ा हुआ है वो भी नॉन क्वालिफाइड होता है, ना वो फार्मासिस्ट है, वो सिर्फ मैट्रिक पास होता है, वो खड़ा हुआ आपको दवाएं बांध बांध के दे रहा होता है। और हम खुश हो जाते हैं कि ये हमने डॉक्टर के पैसे बचा लिए और हमने दवा के पैसे बचा लिए, अब हम लगा के खा लेते हैं इसको और सही हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो ये चीज है वो हम हमारे अंदर खुद से शुरू होती है। सेल्फ असेसमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम क्या चीज खा रहे हैं, कि हमारे जिसम में जो चीज जा रही है हम उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हमें देखभाल की दवा लेनी चाहिए, देखभाल के जो है हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, देखभाल के ऐसे क्वेकर्स के पास नहीं जाना चाहिए, ऐसे मेल प्रैक्टिस के पास नहीं जाना चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो है ज्यादा सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज्यादा इसमें जरूरी है।
Thank you. Thank you, Dr. Saab. Dr. Aftab will be leaving us early due to other prior commitments. We are truly grateful for the time he took out to be with us today. Thank you so much, sir. Thank you very much for inviting. Thank you very much. So sorry, I have another commitment, so I have to leave. But if you can have a question, you can please take. I'll answer that later on. Thank you. Thank you, sir. Our next question is from Larry for Dr. Sadia. Dr. Sadia, given your experience in education governance, where do you see the biggest disconnect between policy and ground level education in schools? And how does this contribute to systemic failure? गुड क्वेश्चन. बट ये पॉलिसी मेकिंग जो है ये अपर लेवल पे होती है. ठीक है, हम अपनी सतह पे अगर कोई चेंज करना चाहते हैं तो ग्राउंड रियलिटीज को ग्राउंड लेवल का बंदा समझता है. हमारी पॉलिसी मेकिंग में कभी भी जो है वो स्टेक होल्डर्स को शामिल नहीं किया जाता. पॉलिसीज बनती हैं पेपर्स के लिए और उसमें ग्राउंड रियलिटीज होती ही नहीं है. तो जाहिर है एक जो है वो डिस्कनेक्शन उसमें शामिल होता है. और फिर ये है कि हमारे यहाँ कुछ खुशामदी किस्म के टोले जो हैं या लोग जो हैं वो मिस इन्फॉर्मेशंस पहुंचाते हैं अपर लेवल पे, वो अपने फ़ायदे के लिए. अब क्योंकि हालात यही हैं कि आप एजुकेशन भी अगर ले रहे हैं तो आप फाइनेंशियल फ़ायदे के लिए ले रहे हैं. मैंने एक ऑफिसर के मुंह से ये सुना कि अब मैंने पीएचडी में दाखिला ले लिया है तो अब मैं सुपरवाइजर बन के नोट कमाऊंगा. मतलब ये अगर एक टीचर की प्रिडिक्शन ये है और उसने सोचा ही ये हुआ है तो आप मुझे बताएं कि उसमें पॉलिसीज क्या करेंगी. तो अफराद की वजह से पॉलिसीज फेल होती हैं और डिसऑनेस्टी की वजह से पॉलिसीज फेल होती हैं. आप देखें, अगर आप जगह से आपको अच्छा मियारी खाना मिलता है तो आप 5 मील का फासला तय करके भी वहां पे जाएंगी. लेकिन अगर कहीं से आपको फ्री में भी मिल रहा है तो आप दूसरी बार नहीं वहां पे लेने जाएंगी. तो इसी तरह से इंस्टीट्यूशंस का हाल है कि मेरा ख्याल है कि हमें ना एक सूबाई सतह पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक तालीमी मुहतसिब भी बनाना चाहिए. उसका एक ओहदा बनाना चाहिए जहाँ पे काउंसलिंग भी हो स्टूडेंट्स की और जो है वो बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स का या पॉलिसी मेकिंग जो है जो ग्राउंड रियलिटीज तक नहीं पहुंच पा रही, ग्राउंड लेवल तक जो है वो अपना फल नहीं पहुंचा रही या फायदा नहीं दे रही, तो उसको रिमूव किया जा सके. Thank you, Dr. Sadia. Our next question is for Colonel Saab from Abu Zarkan. Colonel Saab, given your military and leadership background, what systems or models do you recommend to strengthen institutional responses to medical fraud and malpractice? जी थैंक यू. यहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, any system can work. The bad to worse system can work. Only thing its operators are honest. It is based on merit and the accountability within the system is there. Automatically things start developing and improving. But for example, during President Musharraf era, we studied the best local government systems around the world. And after a lot of research from Europeans and other countries of the world, we brought in a system. But unfortunately, उसका लास्ट चैप्टर था अकाउंटेबिलिटी का. तो जब वो अकाउंटेबिलिटी का गया पॉलिटिकल लीडर्स के पास असेंबली में पास होना, तो उन्होंने वो चैप्टर निकाल लिया. वो पास नहीं करते थे, उन्होंने निकाल लिया. तो अनलेस द सिस्टम की सिलेक्शन है जो मेरिट बेस्ड हो, ऑनेस्टी पे बेस्ड हो और पर्पस पे बेस्ड हो और उसकी अकाउंटेबिलिटी हो, तो ईच सिस्टम कैन वर्क. Our system has delivered in number of areas. Only thing is कि इसमें honesty आए और accountability हो, merit पे selections हो. तो what my simple response to this question is?